Good morning, students. Welcome you all are in physical education. Students, today we are going to start our next chapter, that is chapter number 3, and the topic of the chapter is physical fitness, wellness, and lifestyle. Students, there are three topics in this chapter. First one, meaning and meaning and importance of physical fitness, wellness, and lifestyle. Second one is components of physical fitness and wellness. And third one is component of health related fitness. Today we will take our first topic is meaning of physical fitness, wellness, and lifestyle, and importance of physical fitness. So let's start our first topic, that is meaning of physical fitness. Students, physical fitness and wellness is the correlated word that belongs to the physical fitness. But here we will take first physical fitness. Students, in the modern age, there is a lot of stress is usually laid down upon games and sports. Students, what is physical fitness? Physical fitness क्या है? It is the capacity to function efficiently and effectively, ensure leisure time, leisure मतलब जो हमारा खाली समय है उसको यूज़ करना, and be healthy and resist disease and cope with the emergency situations. हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस के अकॉर्डिंग टू दिस, फ़िज़िकल फ़िटनेस एक ऐसी कैपेसिटी है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने सारे वर्क कंप्लीट करें, लेज़र टाइम को यूटिलाइज़ करें, अपने आप को फिट रखें, अपनी जो अपने आप की फ़िटनेस को है उससे अपने आप को हम डिज़ीज़ से दूर रखें, और जो एमरजेंसी सिचुएशंस हैं उससे हम लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करें. Students, physical fitness varies according to person, athlete to athlete, individual to individual. Means some persons have different type of shape and size of the body and structure, and according to the different gender, that is male and female. So fitness is varies depend person to person, and according to it, physical fitness is the capacity to physical fitness is the capacity to do routine work, routine मतलब daily routine work without any fatigue or exertion. After doing his work, he should have power or strength to do some more work without quick recovery, quick recovery. Students, here I want to tell you, according to this, फिज़िकल फिटनेस एक ऐसा हमारा फिनोमेनिया है जिसके अकॉर्डिंग के हैं जो भी हम अपना वर्कआउट करते हैं, डेली रूटीन वर्क, वो बिना किसी थकान के हम पूरा कर लें, और जब हम वो वर्कआउट फिनिश कर लें उसके बाद भी हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी सेव होनी चाहिए या स्टोर होनी चाहिए कि अगर हमें कोई एक्स्ट्रा इमरजेंसी वर्क मिलता है तो वो भी हम इजीली वर्क को कंप्लीट कर लें. ऑन द बेसिस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज एज यू आर ए फुटबॉल प्लेयर एंड यू नो अ फुटबॉल मैच इज़ अबाउट 90 मिनट्स, एंड if the game is over in the 90 minute, then it is okay. If it is not get any result, then it will take 30 minutes more. Okay, so it means a player should have the stamina or endurance more than 90 minutes, because a match can take time 30 to 40 minute extra, because the golden goal period,
golden goal means 30-minute time period, that is called golden goal. That is if the team, both any team takes a result, then it is okay. Either if it did not get any result, then it will go in the extra sudden death. Sudden death means penalty shootout. So it means you should know, according to the physical fitness, he or she means a player should have the endurance or physical fitness of around 180 minutes. Then he then a football player can play football match easily. According to Don Hoskins, a definition given by the Don Hoskins, that is the human body ability to move with the desired speed, balance, agility, and strength gained through the proper exercise and nutrition. मीन्स अकॉर्डिंग टू द दिस फिज़िकल एजुकेशनिस्ट, जो ह्यूमन बॉडी है उसकी एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए फिज़िकल फिटनेस लेवल में कि वो अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस मीन्स कोऑर्डिनेशन के साथ, एजिलिटी, एजिलिटी मतलब फ्रीली कैन टेक मूवमेंट, एंड स्ट्रेंथ गेन थ्रू द प्रॉपर एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। तो वो अपनी फ़िज़िकल फिटनेस को इन सब कंपोनेंट्स के थ्रू क्या है गेन कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द कार्लोस, सक्सेसफुल अडेप्टेशन ऑफ टू द स्ट्रेस ऑफ द वंस लाइफ स्टाइल। फिज़िकल फिटनेस एक ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कार्लोस कि वो सक्सेसफुल अडेप्टेशन, अडेप्टेशन मीन्स आप अपनी बॉडी को किसी भी कंडीशन में सक्सेसफुली अडॉप्ट कर सकें उस कंडीशन को। आपने देखा होगा कि हम वार्म अप करते हैं। वार्म अप का मतलब यही है कि हम जिस भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स या गेम्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले हैं, उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स या गेम्स के जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है, उसमें अपनी बॉडी को एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के लिए हम अपनी बॉडी को कैपेबल बना लें। इसीलिए और उससे क्या है, हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें इंजरीज़ के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो सक्सेसफुल अडेप्टेशन ये भी यही है, फ़िज़िकल फ़िटनेस का मेन यही पर्पज़ है कि हम जब हम फ़िज़िकल फ़िटनेस हमारी हाई लेवल की होगी अकॉर्डिंग टू द गेम सिचुएशन, तो हम क्या है अपने आप को फिट रख सकते हैं और चांसेस ऑफ गेटिंग इंजरी वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज़ wellness. Meaning of wellness. Students, wellness is the capacity of an individual. जो wellness है वो हमारी एक ऐसी कैपेसिटी है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, इंडिविजुअल प्लेयर की, कि वो अपनी लाइफ को किस तरह से जीता है। एंड वेल बैलेंस, टू लीड अ वेल बैलेंस्ड लाइफ, वेलनेस इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल डायमेंशंस के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। जैसे क्या है, फिज़िकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस एंड सोशल वेलनेस। ये सारे फीचर्स या ऑब्जेक्टिव्स मिलकर एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ को वेल बैलेंस्ड बनाते हैं। बट आज के टाइम पीरियड में द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस, स्टेइंग हेल्दी and achieving the highest powerful potential for well-being, अपनी लाइफ को अच्छी तरह हाईएस्ट अचीवमेंट प्राप्त करना, लेना और पोटेंशियल फॉर वेल-बीइंग हैज़ बिकम द वेरी पॉपुलर। ये हमारा आजकल के सिनेरियो में लाइफ स्टाइल का एक बन चुका है। According to the some physical educationist, there is no यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन। कोई भी पर्टिकुलर एक डेफिनेशन नहीं है वेलनेस की। बट इवन देन द साइंटिफिक मीन ऑफ वेलनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम द डिजीज़। द फ्री फ्रॉम द डिजीज़ मतलब क्या है, हम अपने लाइफ को इस तरह से जीना है कि हम अपनी लाइफ को फिट और हेल्दी रख सकें और डिजीज़ से फ्री रख सकें। वेलनेस इज़ डिफाइंड as the optimal functioning of the body and creative adapting environment that involves the whole person। एक फिज़िकल एजुकेशनिस्ट के अकॉर्डिंग
जो हमारी वेल फिटनेस है या वेलनेस है, वो इस तरह से उसको डिफ़ाइन किया गया है कि जो ऑप्टिमल फंक्शनिंग, ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम फंक्शनिंग है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं और वो फ्रीली वर्कआउट तब करेंगे, फ्रीली मूवमेंट तब करेंगे जब हमारी बॉडी की फ़िज़िकल फिटनेस बहुत अच्छी होगी। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वेलनेस और फिज़िकल फिटनेस दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जैसे फिज़िकल फिटनेस का हमारी बॉडी के सिस्टम्स पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, उसी तरह से फिज़िकल फिटनेस का भी वेलनेस से एक दूसरे से बहुत अच्छा कोरिलेशन बनता है। और ये दोनों जब फिज़िकल फिटनेस हमारी मेंटेन्ड होगी तो ही हमारा क्या है, वेलनेस भी फुल का जो सिनेरियो है वो भी फुलफ़िल हो जाता है। द नेक्स्ट है दैट इज़ क्वालिटी और स्टेट बीइंग हेल्दी इज़ कॉल्ड वेलनेस। जो क्वालिटी और स्टेट बीइंग हेल्दी, लाइफ का जो क्वालिटी है और हेल्दी एक स्टेट कंडीशन है, वो उसी को हम वेलनेस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वेलनेस इज़ कंसिडर्ड द ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ। वेलनेस हम किससे मानते हैं, जहाँ पर क्या है हमारी जो फिज़िकल फिटनेस और वह हेल्थ है वो ऑप्टिमल लेवल पर क्या है फुलफ़िल हो रही। नेक्स्ट वन इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ स्टाइल। स्टूडेंट्स, लाइफ स्टाइल इज़ अ वे ऑफ पर्सन लीड्स हिज और हर लाइफ। लाइफ स्टाइल एक क्या है, एक ऐसा तरीका है जिसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी लाइफ को जीता है। लाइफ स्टाइल इज़ एक्सप्रेस्ड इन एक्टिविटीज़, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, ओपिनियन एंड वैल्यूज़। ये सारे जो फील्ड हैं, जो ये सारे लाइफ हमारी पर्टिकुलर पर्सन, हर किसी पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ के ये सारे होते हैं पार्ट, जिसमें वो सारी एक्टिविटीज़ करता है। किस तरह से करता है, एटीट्यूड, किस एटीट्यूड के साथ वो वर्कआउट को कर रहा है, एटीट्यूड इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेजीनेस है, या इंटरेस्टेड किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट है। ओपिनियन, उसका क्या ओपिनियन है लाइफ के लिए, एंड वैल्यूज़, उसके क्या वैल्यूज़ हैं। ये इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि किसी भी पर्सन की लाइफ स्टाइल को, एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द पर्सन सेल्फ इमेज। और इसी से किसी भी पर्सन की जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट होती है, एंड द वे दे सी themselves एंड हाउ दे आर सीन बाय द अदर पीपल। और उसी के बिहाफ पर लोग उन्हें किस तरह से देखते हैं, ये सब क्या है, लाइफ स्टाइल का पार्ट है। Some definitions are given. Number one is lifestyle is a typical way of life of an individual, group or culture. लाइफ स्टाइल एक तरीका है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ या लाइफ को, ग्रुप को, कल्चर को जानने का। किसी भी ग्रुप, आप में किसी ग्रुप में रह रहे हैं तो उनका क्या लाइफ स्टाइल है, या किसी पर्सन के साथ आप किस तरह से जब रह रहे हैं, या उसके साथ को सपोज़ टीम में हैं आप, तो टीम में अगर 16 प्लेयर हैं तो हर किसी का वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग है। लेकिन जब वो टीम में प्लेइंग एक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं, तब वहाँ पर उनका एक मोटो होता है कि हमें टीम के लिए खेलना है, तो वहाँ पर वो कॉमन हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा क्या है, जब वो अपनी लाइफ को पास करते हैं, जीते हैं, तो वो वहाँ पर उनका सबका अपना अलग अलग क्या है मेथड होता है। नेक्स्ट वन इज़ लाइफ इज़ ए सेट ऑफ एटीट्यूड्स, हैबिट्स एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। ओके, नेक्स्ट वन इज़ a way of life or style of living. Listen one thing, a way of life और style of living, किस तरह से आप लाइफ को जीते हैं, सरवाइव करते हैं, that reflects the attitude and values of a person or in a group. ये उस पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ के जीने का तरीका, एटीट्यूड और वैल्यूज़ को क्या है, या ग्रुप के दिखाता है कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िकल फिटनेस। देयर आर 3 टॉपिक्स इन दिस: इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िकल फिटनेस, इम्पॉर्टेंस ऑफ वेलनेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ health related fitness. First one we are taking importance of physical fitness.
इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल फिटनेस क्या है हमारी लाइफ में, फ़िज़िकल फिटनेस का इम्पोर्टेंस, ये यहाँ पर हम क्या है डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ टू लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. देखिए ये फ़िज़िकल फ़िटनेस का हमारी लाइफ में किस तरह से हम जी रहे हैं इसका बहुत बड़ा रोल पड़ता है. अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, टू लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, अ फिज़िकल फिट पर्सन, एक पर्सन जो फिज़िकली फ़िट होता है, अगर वो फिट है तो अपनी लाइफ को अच्छे से जीता है, हेल्दी लाइफ को पास करता है, एंजॉय करता है. लेकिन अगर वो फिट नहीं है तो उसको अपनी बहुत सारी डिजीज़ से, अपनी फ़िटनेस से क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ेगी. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द फिज़िकल फिटनेस. सेकेंड वन इज़ टू इंक्रीज़ द एनर्जी, strength and capacity of the body. It is the most important topic, because if we are doing the workout for physical fitness, then it increases the our energy, strength and capacity of the body. And we should do daily routine, we should do exercise in daily routine, because if we do exercise in daily schedule, then it builds up our muscular system and as well as skeletal system. It also come in the next topic. Next one is to reduce and the probability of getting disease. देखिए अगर आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं तो फिज़िकल फिट पर्सन होगा, तो अगर वो डेली एक्सरसाइज कर रहा है बिना किसी थकावट के वो अपने वर्कआउट को पूरा करेगा. और जब वो डेली रूटीन में अपने वर्कआउट को पूरा कर रहा है तो वो उसकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो डेवलप हो रही है, मस्कुलर स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है. साथ ही साथ क्या है, इंजरीज़ के चांसेस रिड्यूस हो रहे हैं. इसके साथ एक चीज़ और इसमें जुड़ जाती है, अगर हम डेली रूटीन में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक इस बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी बॉडी के सिस्टम का वो स्ट्रेंथन होता है, उसका नाम है इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम हमारा अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम क्या है अपनी किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए हमारी बॉडी कैपेबल हो जाती है. आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में दो तरह के फाइबर काम करते हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी. आरबीसी के डब्ल्यूबीसी जो होता है वो हमारी इम्यून सिस्टम में भी काम करता है. उसके अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं वो वायरस से लड़ने के लिए हमारे अगेंस्ट किसी भी डिजीज़ से के लिए काम करते हैं. एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अगर हम ड्यू टू द फिज़िकल फिटनेस, अगर हम फिज़िकल फिटनेस पर काम कर रहे हैं और बॉडी तो ये क्या है इम्पॉर्टेंट हो जाता है बॉडी के लिए कि ये हमारे हार्ट, लंग्स और ब्रेन को क्या है स्ट्रॉन्ग करते हैं. और ये जब ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारी क्या है इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा, और जो चांसेस होते हैं बीमार पड़ने के वो क्या है बहुत कम हो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, पड़ सकते हैं, लेकिन चांसेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं. और आजकल के आप टाइम पीरियड में देख रहे हैं डॉक्टर भी हमें अवॉइड कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि ये जो बहुत ही क्रूशल पीरियड चल रहा है कोविड-19 का, इसमें वो डॉक्टर्स ये हमें प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, फ़िज़िकल फिटनेस और ट्रेनर हमें एडवाइस कर रहे हैं कि डेली आप अपना रूटीन में एक्सरसाइज को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. नेक्स्ट वन इज़ टू स्ट्रॉन्ग and active muscular and skeletal system. Listen student, फिज़िकल फिटनेस के कारण क्या है, एक पर्सन अपनी एक्टिविटी के साथ इजी हो जाता है, अपने पोस्चर को मेंटेन करता है, और पोस्चर मेंटेन होने के साथ साथ मस्कुलर स्ट्रेंथ डेवलप होती है, मस्कुलर शेप प्रॉपर होता है, और इसके साथ साथ क्या है स्ट्रॉन्ग होती हैं हमारी स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स. स्केलेटल सिस्टम में क्या है बोन्स आ जाते हैं, हमारे जॉइंट्स आते हैं, वो भी क्या है स्ट्रॉन्ग होते हैं. जब हमारी बोन्स और जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारे क्या है चांसेस ऑफ गेटिंग इंजर्ड और इंजरी वो कम हो जाते हैं.
Next one is to increase the memory and recall capacity of mind. Students, physical fitness is also affect the mind of a person. देखिए, जो फिज़िकल फिटनेस है वो हमारे माइंड को भी अफेक्ट करता है। अगर हम रेगुलर अपने शेड्यूल में फ़िज़िकल फिटनेस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं और योगा आसन्स कर रहे हैं, तो इससे क्या है, हमारे मेंटल फिटनेस पर भी अफेक्ट पड़ता है और वो उसमें बेटर रिज़ल्ट आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन एंड लास्ट इज़ टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। फिज़िकल फिटनेस से क्या है, हमारी मेंटल हेल्थ भी डेवलप होती है एंड इट्स लीड्स टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव बॉडी इमेज। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है मेंटल हेल्थ। अगर मेंटल हेल्थ हमारी फिट है, वैसे तो हमारा ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन दोनों से ही बनता है, फिज़िकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस, तभी हमारा कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। कोई भी हम स्किल्स को परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर फाइन रिज़ल्ट या बेस्ट रिज़ल्ट तभी हमें मिलेंगे जब हमारी दोनों फैक्टर काम एक साथ कर रहे होंगे। कौन से दोनों फैक्टर? फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल फिटनेस एंड सेकंड वन इज़ मेंटल फिटनेस। तभी हम क्या है, वहाँ पर बेटर और फास्ट रिज़ल्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक आपने वर्ड सुना होगा टाइमिंग, क्रिकेट में आपने बहुत सुना होगा। टाइमिंग पर्टिकुलर कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। टाइमिंग एक्चुअली एक होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू द मस्कुलर सिस्टम एंड न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। तो जो ये दोनों सिस्टम काम करते हैं, मेंटल एंड मस्कुलर, तो वहाँ पर जब हम फिज़िकल फिटनेस होंगे एज वेल एज़ क्या है, हम मेंटली फिट होंगे, तब हम किसी भी स्किल को परफॉर्म कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम उसको बहुत शार्पली कनेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे से जब वो कनेक्ट होंगे तो वहाँ पर आप स्किल को फाइनली परफॉर्म करेंगे। This is all about the physical fitness importance. Students, I hope you will get each and every topic or point very clearly and try to understand the topic and make the notes of the all the chapters in your fresh notebook of this subject. And if you have any problem, then you can contact me, feel free. Okay, thank you.